voting for the first phase of elections on 121 seats in Bihar is done. And now the political campaigning begins for the second phase. All eyes on the 122 seats. And I was on my way to Gaya, which of course will be voting in the second phase on 11th. And while we were crossing this, I just saw this massive structure being created here. We came, spoke to the people. This is preparation for Chief Minister Nitish Kumar's public rally, which is going to take place here on the 8th of November. What is interesting is to not just to see, what all goes on, and all this is being done on the expenses of the candidate, the local candidate here. It's also interesting to try and get some voices of the people, those who make this possible, because they eventually are also the voters. So let's just try and find out what's happening here, how these preparations are done, and what do these people, those who are making these massive structures where promises will be made, the chief minister would come ask for another term. How much of a difference has politics in the last 20 years made in the lives of people like these, those who are cleaning this entire place at this moment and the ones building this entire structure? That enclosure that you saw was before the chief minister. It will all be covered up where the stage will be set and he will come and speak. This is where his chopper will be landing. So all preparations for this temporary helipad which is being made here for the chief minister's chopper to land. Let me try and get a sense of what's happening here and who is making these preparations. Raju Yadav ji, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है. क्या तैयारी चल रही है सर? हम जा रहे थे, हमने देखा इतना सारा आप लोगों ने ट्रक लगाया हुआ है, इतना बड़ा. शादी वादी तो नहीं हो रहा है किसी का? नहीं, शादी के समय नहीं है और शादी का कोई लगन भी नहीं है. कल सभा होना है. माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ आ रहे हैं जी, बेला पड़ाव पर जनता के संबोधन करने. तो तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? तो आप जेडीयू से हैं, प्रत्याशी जो हैं यहाँ पे, उनके साथ हैं आप? हम लोग उनके समर्थक हैं. तो ये तैयारी जो होती है ये सब कैंडिडेट के खर्चे पे होती है? जो कैंडिडेट का खर्चा होता है उसी पे होती है ना सारी तैयारी? ये सब जो टेंट वेंट लग रहा है सब पार्टी की ओर से होता है. पार्टी की ओर से तैयारी सब हो रही है. तो कितने लोगों के लिए आप लोग करा रहे हैं तैयारी? कितनी जनसंख्या आपको कल लग रहा है ये सुनने के लिए? 25 से 30 हजार. पूरा भर जाएगा ये तो? पूरा भर जाएगा, पूरा रोड भर जाएगा, पूरा फील्ड भर जाएगा, कोई जगह खाली नहीं रहेगा. आप बताइए, आप लोग कहीं सुनेंगे जो कहेंगे यादव जी तो सारे लोग मान के चलते हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि सब यादव जी लालटेन वाले हैं, तो ये यादव जी तीर वाले कैसे हैं? ये भी तो तीर वाले यादव जी हैं जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे. कैंडिडेट भी तो यादव जी हैं. So, like I was telling you, so all these preparations are being made and a lot of people are here. This is, of course, for Manorama Devi, who is the JDU candidate, squaring off against, another Yadav candidate from the RJD, who was till very recently in the bypoll was defeated, but RJD had this constituency as one of their strongholds. What will happen in this upcoming election? The voters will decide. Let's try and speak to a few of them. देवानंद दास. आप तो फिल्मी नाम है आपका, देवानंद वाले हीरो का नाम है. जी सर. मम्मी पापा ने उन्हीं को सोच के रखा था? जी. देवानंद उनको पसंद थे? जी. कहाँ से वो देवानंद? हमारा खरेटा घर पड़ता है सर. खरेटा? जी. कितना दूर है? ये बगल में है सर. बगल में? बेला से 3 किलोमीटर पड़ता है सर. 3 किलोमीटर पड़ता है जी. सफाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी, सफाई के काम कर रहे हैं सर. अच्छा, तो क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार निकले जी. क्यों? काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं जी. नीतीश कुमार की रैली की तैयारी भी करवा रहे हैं? जी. जी सर. अच्छे हैं, पसंद है आपको? हाँ, पसंद है. हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व पे काम करने के मनोरमा देवी को वोट दे रहे हैं. ये तो आप लोग हर बार उन्हीं को वोट करते हैं? पहले किसको करते थे? पिछली बार भी उन्हीं को करा था? नहीं, मनोरमा देवी जब से खड़ी हुए हैं ना, जब से वोट इनका ही दे रहे हैं. उससे पहले तो पहले सुलेंद्र यादव थे. लालटेन थे पहले. अब बदल लिया? अब बदल गए और बढ़िया काम कर रहे हैं तो बदल गए. मेरा नाम इंद्रेश कुमार जी. इंद्रेश कुमार जी? हाँ. कहाँ से हैं? शेखपुरा गांव से हैं, अगंधा पंचायत से हैं सर. अच्छा जी. हाँ. क्या कर रहे हैं? सफाई का कार्यक्रम चल रहा है? कर रहे हैं सुजर. सब तैयारी चल रही है? जी हाँ. वोट हो गया आपके यहाँ? नहीं, अभी नहीं हुआ सर. 11 तारीख को है? 11 तारीख को है. क्या मुद्दे पर वोट हो रहा है इस बार? इस बार अथी पर तिरछा पर हो रहा है.
तीर छाप पर हो रहा है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हो इसलिए बोल रहे हो तीर छाप? जी नहीं सर, पहले से भी तीर छाप को पहले से भी, क्योंकि 6 महीना इनका टाइम मिला, जो अच्छा रोड बना, रहने सहने का सुविधा हुआ, सभी चीज का 35 साल में क्या हुआ? अच्छा, तो हमेशा से तीर छाप करते थे या पहले किसी और को करते थे? पहले तो वही है, ये था तो उन्हीं का लालटेन होता था, लालटेन को। कोई इनका जोड़ी के ऐबे नहीं करते थे तो क्या किया जाए? अब बदल दिया है। बदल दिए ना, तो आज हमको 9,000 रुपया मिला। कौन 9,000 देता है? 9,000 किस बात का? वो सफाई करने का, कूड़ा उठाने का। उषा जी क्या करती हैं आप? हम तो पंचायत पर्यवेक्षक हैं। पंचायत पर्यवेक्षक हैं। तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ साफ सुथरा करवाने आए हैं। कल मुख्यमंत्री जी का रैली है इसलिए। जी जी, कल मुख्यमंत्री जी का रैली है तो पसंद है मुख्यमंत्री जी आपको? हाँ, पसंद है ये हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में तो देखिए सर, जिसको जैसा हवा बह रहा है, हम लोग को तो श्री नीतीश कुमार जी को है, ये है कि हम लोग अथी आवे फिर से। क्या लेकर आए ट्रक में? ये जी आया है सेंटिंग वाला। ये सब? हाँ, तब ये तब लेके आया, ले उतार ले, लादे तब बेटवा ये सब उतारा और लादा आप लोगों ने? था बाबा कहाँ ये, कैसे इतना सारा सामान भारी उठा लेते? नहीं माने करना पड़ता है ना, भुखमरी है तो क्या करेंगे? खाने कमाने का 4 गो लड़कन है, पढ़ाई लिखाई है। पढ़ते हैं बच्चे? जी था। कहाँ पढ़ते हैं? एगो 9 में पढ़ता है, हाँ। एगो 6 में पढ़ता है, क्या नाम है आप? एगो BA किए हुए है बच्ची। बच्ची BA किए हुए? जी, क्या नाम हो आपका? मधेश प्रसाद, कहाँ से हो? पटना जिला, नवादपुर थाना। जी आपके यहाँ तो वोटिंग हो गया? जी हाँ, 6 के हो गया। करा है ना वोटिंग? जी, क्या रहा इस बार? ठीक चला। सब बढ़िया? जी हाँ, किसका बढ़िया चल रहा हवा? वो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो गिनती होने के बाद ही। गिनती होने के बाद। जी आप किसे जिता रहे हैं? जी, आप किसे जिता रहे हैं? तो हमने तो सर शुरू से हैं, तो शुरू से आज हैं। हमने के तो गरीब रैली लालू प्रसाद जी हैं, बस उनके पर हमने जी रहे हैं। आप सबका वोट हो गया है? जी, सबका हो गया? तो क्या रहा आपके वोट में? चाचा आप बताओ। होने ललतेन के काली पड़ ली 22 साल के हो तो 12-13 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया? तो खेती बाड़ी सब है ना, गरीब आदमी के यही सब काम है। घर की स्थिति खराब थी तो तुम्हें भी काम करना पड़ा? तो गरीबी के चलते पेट के चलाने के लिए कमाने पड़ता ना है। तो तुमको नहीं लगा कि थोड़ा अगर अब मौका मिलता तुमको और अच्छा पढ़ाई करने का, तुम पढ़ते? पढ़ाई के मौका ना मिला है, यहाँ कमाइए तो घर में चलाइए न, खेती बाड़ी कब पढ़िएगा, मौके नहीं मिलेगा। कितना कमाते हो? यहाँ मिलता है, गाड़ी पे मिलता है लोडिंग खाली पर 3-3 हजार, खाना खुराकी 3,000 एक आदमी को? सबको मिला के? सबको मिला के गाड़ी पर 3,000 मिलता है। पूरा गाड़ी पे 3,000 रुपए मिलता है? एक ही गाड़ी पर 3,000 मिलेगा, फुल उतर जाता है ऊपर। सारा आप लादते हैं और उतारते हैं? लोडिंग के अलग बहुत भारी होता है यार। भारी होता है, तब कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। एक इसको उतारने में जरा गोपाल जरा दिखाइए पीछे कितना, ये जो पीछे नीचे रखे हुए हैं जिसको अभी ये क्रेन से उठाया जा रहा है। एक रॉड 100 किलो का है? नहीं तो एक रॉड कितने का होता है, कितना भारी होता है? तो कम से कम भी तो 40 किलो रहता है, 40 से 45 केजी तक रहता है। 40 से ज्यादा रहता है? तो कितने लोग लगते हैं एक को उतारने में? 2 आदमी उतारते हैं? जी। पूरा ट्रक भरा हुआ आता है? You know, I just want you to imagine this entire thing being filled up till the brim and all these people will take this out. ये बताइए, तो ये पूरा उतारने में 3,000 रुपए मिलता है एक गाड़ी में? एक गाड़ी में कितना आदमी काम करता है? आप लोग कितने लोग होते हो? 6 गो रहता है। जितना भी आदमी हो? हाँ, 3,000 रुपया मिलेगा। 3,000 रुपये मिलेगा बस। आप लोग आज कितने लोग हो? अभी तो 9 आदमी है। 9 लोग हो? हाँ। तो सब में बट जाएगा ये? हाँ। आप गया से हो? आपका क्या करते हो दोस्त? क्या करते हैं, किसानी खेती बाड़ी करते हैं सर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? अभी आदमी कम था तो मेरा दोस्त लोग काम कर रहा था तो बोला काम यहाँ पे है, आ जाओ कुछ पैसा। हम भी सोचे कुछ करेंगे तो मैं कुछ कमाई हो जाएगा। पढ़े लिखे हो? पढ़े
पढ़े लिखे हैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा किसान में खेती बाड़ी हुआ। पिताजी अकेलवा आदमी थे, पढ़ाई लिखाई कम किए हैं। कहाँ तक पढ़े हो? हम ज़्यादा तीसरा क्लास तक पढ़े हैं। ये मजदूरी का काम? मजदूरी खेती गृहस्थी करते हैं, टाइम इधर उधर मिलता है तो इधर उधर भी कर लेते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, सरकार कंपनी है नहीं तो क्या करेंगे। साल में कितने महीने बाहर रहते हो? साल में 8 महीने 10 महीने बाहर ही रहते हैं। धन्यवाद भाई। यू नो इट्स लाइक दे सेड दैट सबका अपना अपना मन है, सो ऑफ कोर्स इट्स एवरीबॉडीज चॉइस, बट it's sad to see the situation that these people are in. Just look at this gentleman. It's difficult, and this tells you the story of Bihar. In 20 years, what has changed? Voices, and these voices matter in election. These voices are the ones that define an election. These voices are the one that shape the incoming government. The problem is that these voices are largely heard only when elections are around, at least on our cameras. Whether they are heard by the politicians, that is something that, I mean, if they were hearing them, possibly things would have changed for them. And that's the sad reality of Bihar. I just stopped here randomly. You saw how some people are talking about the JDU somewhat. But largely the pain that they share about their situation, their social status, and their economic status, that seems to be the common binding factor as far as these people are concerned. With my colleague Gopal Ankit Tyagi, NDTV.